Well, in this video we will study about once again we will discuss about refraction of light. Refraction of light. So here is the application, some phenomena related to the refraction of light. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ some phenomena related to refraction of light. Some phenomena related to refraction of light. Okay, so first phenomena is के जो normal shift in position, हमारा पहला आर्टिकल रहेगा normal shift in position. Normal shift in position of an object in denser medium. Normal shift in position of an object in the denser medium. Okay, so well फर्स्ट हम सबसे पहले एक डायग्राम बना करेंगे और डायग्राम बनाने के बाद आपको कुछ आभास होने लगेगा कि कितना साधारण सा प्रोसेस है आपको समझने के लिए. So initially we'll prefer to draw the diagram for this. Let's say we'll choose this. Okay, so ये हमारा कुछ डायग्राम इस तरीके का होगा. This is some container. Okay, और इसमें the surface of water. So now let us consider that initially the object located at this point, right? And this is the real depth of the object. So we can mark this point as O. It's the position of the object. And this point as A. So ray of light is coming from here and going in the same direction. And then a ray of light also goes from here, from this object. It will strike at this point at the interface of the two medium, right? So this is the normal. This is a normal to this point, and then the ray of light will, as it is going from the denser to rarer medium, so it will bend away from the normal. So it will bend like this. Okay, और यदि हम इसको यहाँ से complete करते हैं, then this will be the position of the image. Now we will mark these points. This is angle I. Okay, this is the angle of refraction R. So this will also be R. ये भी R रहेगा. अब ये जो दोनों साइड्स पैरेलल हैं, यदि ये I है तो ये भी I रहेगा, right? So this is the position of the image now. यहाँ वो आपको जो कॉइन है वो यहाँ दिखेगा, राइट? अब इसकी कहानी हम बड़े सिंपल तरीके से लिखेंगे और ये इतना आपको बिल्कुल साधारण लगेगा कि कितने आराम से हम इसका मैथमेटिक्स हम कितने आराम से लिख देंगे और आपको बहुत आराम से समझ आने वाला है. जरा देखते हैं कि हम उसमें एक पॉइंट चूज़ करते हैं. देखिए, इसमें आप ज़रा इस पोजीशन को चूज़ कर लीजिए. यहाँ इस पोजीशन का नाम हम लिख देते हैं, नाम नहीं रखा इसका, इस पॉइंट को हम सी रख देते हैं. ओके, अब हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं. इस पॉइंट के ऊपर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो उसमें आएगा कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस पॉइंट, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम
डेंसर टू रेयर मीडियम। तो आपको एक तरीका बताया था याद करने का, DARA। So if the ray of light is going from denser to rare medium, then it will go bend away from the normal. This means this is the angle of refraction. Okay, so now how to write it? इसका मैथमेटिक्स हम कैसे लिखेंगे? बाटर से। ये डेंसर मीडियम जो है ये बाटर है और ये एयर है। अब आप बड़े सुंदर तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और आप, मुझे लगता है शायद आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। देखिए WNA, ठीक है। तो आप जब तक वो वाटर में है तो साइन है, ये साइन आई आएगा, जब वो एयर में चली गई तो साइन आर हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करिए कि जो साइन आई को डिटर्मिन करिए कि साइन आई कितना है। तो साइन आई को डिटर्मिन करने के लिए आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, यहाँ इसी डायग्राम में से ये ट्रायंगल आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए वाला, राइट। आप ये ट्रायंगल चूज कर लीजिए और ये ट्रायंगल है O और ये A और ये C। दिस एंगल इज I एंड दिस इज द रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है। ओके, जरा देखिए साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि फ्रॉम हियर ऑन, फ्रॉम ट्रायंगल OAC we have angle AOC is the angle of incidence। और यहाँ से निकालिए आप साइन आई क्या होगा? साइन आई होगा परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज OC, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 में साइन आर भी इन्वॉल्व है। अब साइन आर की आप एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लीजिए। For sin I, we have selected this triangle OAC and evaluated sin I as AC upon OC. So, to evaluate sin R, we will select the triangle, right, from triangle O prime AC. This is O prime AC. We have triangle AO prime C is equal to R, and now sin R is equal to, this is AC upon O prime C. Okay, so this is equation number 3. अब हमने इवेल्यूट किया कि जो we have evaluated now from equation 1, 2 and 3, from equation 1, equation 2 and equation 3, we have, this is WNA is equal to sin I is equal to AC upon OC, and sin R is equal to AC upon O prime C, right? So AC से AC कैंसिल हो जाएगा। और अब जो प्रॉब्लम है कि यदि हम OC को प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो OC और O प्राइम C को इवेलुएट करना, कैलकुलेट करना, मेजर करना वो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि O प्राइम C को OA प्राइम की फॉर्म में लिखा जाए और OC को OA की फॉर्म में लिखा जाए। तो हम यहाँ पहले तो लिखते हैं कि ये बनेगा हमारे पास O प्राइम C अपॉन OC। सो नाउ for the measurement purpose, this is OC is nearly equal to OA and O prime C is nearly equal to O prime A. Okay, so then WNA is equal to
this is O prime A upon OA, right? So this is what we have here, right? पर अब हम इसको एक बेसिक फॉर्म में लिखना जरूर पसंद करेंगे कि यहाँ आप देखें कि हम इसको ऐसे लिखते हैं दैट W and A is equal to A and W, right? इसको यदि हम लिखेंगे 1 upon A and W, so this is A and W is equal to OA upon O prime A. So rarer to denser, but we have done earlier rarer to denser. यदि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो इसको मैं जस्ट n लिख लेता हूँ. दिस इज रेयर टू डेंसर को हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओ ए अपॉन ओ प्राइम ए. तो ओ ए क्या है, ये रियल डेप्थ है, दिस इज अ रियल डेप्थ, एंड ओ प्राइम ए इज द अपरेंट डेप्थ, दिस इज अपरेंट डेप्थ, राइट. अब हम ये देखें कि जो रिलेशन है इसको हम आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं. ये रेशियो आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रियल डेप्थ ओवर द अपरेंट डेप्थ. यहाँ से यदि आप अपरेंट डेप्थ निकालना चाहते हैं, अपरेंट डेप्थ इज apparent depth is real depth upon n refractive index. या आप ऐसे लिख सकते हैं A and W, this is all up to you. So this is way you can calculate the apparent depth. Okay. अब हमें देखना है कि जो इमेज जो है वो कितना ऊपर चला गया है, जो ऑब्जेक्ट से इमेज की जो हाइट कितनी होगी. हम इसको सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कोई x पोजीशन वो ऊपर चला गया है, दिस इज कोई x मीटर ऊपर चला गया है, राइट. सो शिफ्ट इन पोजीशन हम निकालें, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई है, लेट इट इज x को आपने वैल्यूट करना है तो ये हो जाएगा, इसको आप लिखें ओ ए माइनस ओ प्राइम ए. इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ओ प्राइम ए अपॉन ओ ए, राइट. सो दिस इज शिफ्ट इन पोजीशन दैट इज x. अब आपके पास आ जाएगा O prime upon OA. OA upon O prime A is equal to n. Then O prime A upon OA is equal to 1 by n. So this is equal to OA is some, you can say it's कोई T, इसको हम मान लेते हैं. This is the height of the tank. This is T into 1 minus 1 by refractive index. Okay. So this is what the expression for shift in position. Then the object is placed in the denser medium. Okay. So where T is the real depth. ये जो ये पार्ट है हमारे पास, here T is a real depth, right. This is all about it. अब हम आगे चलते हैं कि कुछ और एप्लीकेशंस हम आपके साथ इसके डिस्कस करते हैं. इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना पड़ेगा, राइट. So sun appears oval shaped at the morning and evening. So another application is sun appear oval shaped in morning and evening. भाई, दिस इज अ क्वेश्चन. सो इसके लिए हम आपके साथ पहले एक डायग्राम शेयर करते हैं, उस डायग्राम से आपको एकदम से समझ आ जाएगा. सो दिस डायग्राम इज दिस.
So just see this diagram. इसको हम एक साइड पर रखते हैं। देखिए, जब आप मॉर्निंग और इवनिंग में सन को देखते हैं तो सन जो हॉरिजन से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। दिस इज़ द हॉरिजन, दिस इज़ अर्थ, you are in the position of observer and this is the apparent position of the sun. So what actually happen, जो अर्थ के किनारे कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं, अराउंड रिंग आप मान सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ऐसे करके और कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके। ओके, सो होता क्या है कि एक्चुअली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग सन इज़ नियर द हॉरिजन। आप देखिए कि मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो है हॉरिजन के बिल्कुल नज़दीक है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेयर्स ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, जो ये लेयर है इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाइट बढ़ने के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो जब रे ऑफ लाइट आती है तो रे ऑफ लाइट यहाँ टकराने के बाद जब जो लाइट है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है, तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो यू कैन कंप्लीट द रे डायग्राम इन सच ए वे कि जब अलग अलग रे से रे ऑफ लाइट जाएगी देन इट विल बेंड एंड रीच द ऑब्जर्वर। और यदि आप इसको इस तरह से कि आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आपको सन की लोकेशन जो दिखाई देती है। क्लियर? सो द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन, एक रे ऑफ लाइट लोअर एज से जाएगी और एक अपर एज से जाएगी, राइट? सो द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड मोर देन दोज ऑफ द अपर एज ड्यू टू द पासेज ऑफ द ग्रेटर थिकनेस ऑफ द एयर, राइट? जो लोअर एज वाली होगी वो ज़्यादा थिकनेस इसको कवर करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एज ऑफ द सन ये अनइक्वली बेंड करती है। ओके, सो ड्यू टू अनइक्वल बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से image of the vertical diameter of the sun appears to be oval and large in size. Okay, so this is the one application, and the second application of refraction of light is time difference during the sunset and sunrise. Time difference during sunset and sunrise। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और इसके लिए भी हमारा जो डायग्राम है वो सेम ऐसा ही रहेगा। देखिए, जो सन है ना, सन इज़ विजिबल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। देखिए, जब ये हॉरिजन है और जब ये सनसेट हो चुका है उसके बाद भी आपको जो डायग्राम भी सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगी। और जब सन एक्चुअली हॉरिजन से नीचे चला जाता है उसके बाद भी वो दिखता रहता है। हाउ इट गोज, ये सेम एक्सप्लेनेशन जो आपको अभी दी है। और सन इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, राइट? बट विल हैपन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द डेंसर एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ। इसका फार्मूला लिखा है, एंड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट apparent shift in the direction of the sun is half of the degree, okay, leading to the refraction of light, leading to the delay of about 2 minutes। इससे कुछ 2-1 मिनट का फर्क पड़ जाता है इन एक्चुअल एंड अपरेंट सनसेट में। अर्थ, जैसे अब इसका हम मैथमेटिक्स करें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन जो 360 डिग्री होते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। ओके, सो देयरफॉर टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट, यहाँ लिख दें हम के टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट। 360 डिग्री शिफ्ट करने के लिए टाइम लगता है 24 आवर्स, राइट? फॉर 1 डिग्री शिफ्ट इन पोजीशन आपके पास आ जाएगा 24/360 आवर्स पर मिनट, राइट? सो आपके पास आ जाएगा ये 12×24 और 12, सो इट इज
24 आवर्स ये बन जाएगा। आप इसको कर दें, हम ले लेते हैं कि यदि हाफ डिग्री के लिए आगे निकालते हैं कि इसमें टाइम टेकन फॉर हाफ डिग्री, टाइम टेकन फॉर हाफ डिग्री से आपके पास आ जाएगा 24/360 इंटू 1/2 डिग्री। सो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आवर्स। आवर्स 2 हम 12 आ जाएंगे और हम ये आ जाएगा आपके पास 1/30। ओके, सो 1/30 into 1 hour means 60 minutes. It will take 2 minutes. So 2 मिनट हाफ डिग्री में जैसे सनराइज होता है या सनसेट होता है तो हाफ डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। तो हाफ डिग्री मीन्स 2 मिनट। तो सनराइज में भी 2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा और सनसेट में भी 2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। सो द टोटल डे इज लेंथड बाई, सो टोटल डे इज लेंथन बाय 2 मिनट मॉर्निंग में और 2 मिनट इवनिंग में, इट इज इक्वल टू 4 मिनट. Okay, so this is all about the application of the concept refraction of light.